A very good evening to all the participants present. I am Divya Pansal from Christ University, Delhi NCR. I'm a first year student studying BSc Psych Honors, and I'm also an intern at Spirituality Health Inner Values Academy. President Mr. Azim Dana is with us today here shortly. Our speaker for today's session on psychoneurobics and divine healing is already with us, and I'll be taking a moment to introduce her. Ms. Kajal is certified in past life regression and is also a certified hypnotherapist. She is a Reiki healer and a meditator and has completed her diploma in psychoneurobics. And just a short disclaimer that this is an introductory session to the entire certification course on psychoneurobics and divine healing. And thank you. And now I'll be handing over the session to Ms. Kajal. Thank you. Thanks a lot, Divya. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible and visible. Okay, thank you. Thanks a lot, and welcome to all the participants who has joined the psychoneurobic course. And it is just an introduction to what is psychoneurobics. So first I will take you to the problem, like what we are facing, the problems in today's life. So basically, what are we facing in today's life is lot of illness, lot of disease, what we are having in today's life. Just a moment. Yes. So psychoneurobics is and a divine healing, and I will be sharing. Want to come up with the problem that is illness and diseases what we have in our human body. So starting with we are born in a human form, right? Like we are born in a human form with all the organs available. हम सभी हमारे पास सबके सब ऑर्गन्स हैं. We are born with that, most of it, like 99% or 90 to 95% we हमारे सारे organs जब हम पैदा होते हैं तो सारे organs absolutely अच्छे से चल रहे हैं, right? So then comes our spine. So we are born with the entire spinal cord. We have different organs who are working really nicely, like heart, lungs, stomach, liver, gallbladder, everything. Everything is working nicely. We are born with that, right? So जब हम पैदा होते हैं सब कुछ सही चल रहा है. So my question is कि फिर कहाँ गड़बड़ होती है? मतलब अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या हुआ कि है ना हमको डायबिटीज आ गया, क्या हुआ हमारे बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो गया, you know, or if we have heart problems, so what happened? If we have any other problem, if we have like some people have a lot of cough और वो सब issues रहते हैं, तो क्या हुआ? And we are on the pills sometimes, like some of the other problems are there. People do have migraines, people do have stomach aches, अचानक से शुरू हो जाता है. There are so many diseases in today's world. And what are the reason? We are taking pills, agreed. लेकिन वो पिल्स हमारी जो सफरिंग है या हमारा जो डिजीज है या जिस भी बीमारी से हम हैं तो वो बीमारी ठीक हो रही है? दैट इज अ मेन इशू, दैट इज अ क्वेश्चन कि क्या वो बीमारी ठीक हो रही है. सपोज इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डायबिटीज एंड आई एम टेकिंग इंसुलिन इंजेक्शंस, सो क्या वो मैं रोज दवाई ले रही हूँ खाने से पहले, खाने के बाद, or I am taking insulin, or I am on medication for long period of time, तो क्या वो मेरे अंदर जो प्रॉब्लम हुआ है वो ऑर्गन में या एनीथिंग, तो क्या वो ठीक हो रहा है? अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो रोज दवाई हम लेते हैं बीपी की, एंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स इट इज फॉर लाइफ लॉन्ग, तो क्या वो ठीक हो रहा है?
नहीं, मतलब वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। तो व्हेन वी आर born with the proper working organs and when we have some problem with the organs, तो first thing is कि why there is a problem. Second thing is कि if we are on medications, तो क्या वो ठीक हो रहा है? You know, it is something like कि हमारा घर है, we are supplied with all the electronic gadgets. हमारे घर में सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं. सपोज वी कैन टॉक से दैट कि हमारे घर में सब कुछ है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. टीवी, फोन एंड मिक्सर ग्राइंडर एंड एवरीथिंग, फैन, लाइट, एवरीथिंग वी हैव जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, राइट? तो लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं हो तो, अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलेंगे? नहीं चलेंगे. सो व्हाट विल हैपन? आइदर हमको वो उस टाइम के लिए या तो जनरेटर पे चले जाएंगे या इन्वर्टर पे चले जाएंगे, सो दैट हमको जिस चीज की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, जो भी गैजेट्स को, तो वो करेगा, राइट? सो आई फील कि अगर हम दवाइयां ले रहे हैं और अगर वो अंदर से ठीक नहीं हो रहा है, तो isn't it something like कि हम भी इन्वर्टर पे आ गए हैं या जनरेटर पे आ गए हैं? The main thing what it was for me also कि I want to know the reason कि why I क्यों बीमार पड़ते हैं और वो हील क्यों नहीं होता है. I have always been for a reason on asking कि what is the reason, चीजों का रीजन क्या है, क्यों ठीक नहीं होते हैं. So reason is healing. Suppose, for example, I still want to explain it further. For example, जैसे suppose for example dead body है, राइट? डेड बॉडी सपोज अभी कोई गुजर गया है, तो डेड बॉडी है. डेड बॉडी के ऑर्गन्स अगर हम लेके किसी लिविंग बॉडी के अंदर लगा देते हैं, तो दैट ऑर्गन इज वर्किंग. लेकिन वही ऑर्गन डेड बॉडी में काम नहीं कर रहा है. व्हाट इज अ डिफरेंस? दैट इज a thing to be thought of कि what is a difference. वही ऑर्गन लिविंग बॉडी में काम करना चाहिए. So what is a difference? I feel दोनों बॉडी में फर्क ये है कि एक बॉडी में सोल नहीं है, दूसरी बॉडी में सोल है. We start from human body. ह्यूमन बॉडी से हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से हमारा ब्रेन है. एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली ऑल राइट. फिर बहुत से ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है एंड वी आर दैट ऑर्गन्स आर अनेबल टू वर्क. सो देयर इज अ डिस्कनेक्शन ऑफ आवर सेल दैट इज कॉल्ड सोल एंड टू डिवाइन. हमारे जो दिनचर्या है वो कुछ इस तरह से हो गई है कि वी डोंट सिट एंड प्रे. वी डोंट सिट एंड प्रे. दैट इज वो हमारी एक दिनचर्या हो गई है. So psychoneurologics is simple a connection from a soul to divine. Yes, I will एक minute. Yes, so we आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, आज का जो हमारा कैलकुलेशन रहता है, एंटायर जो दिनचर्या रहता है, वो सुबह उठने के साथ साथ फर्स्ट थिंग लेट वेकअप, हम उठते लेट हैं. सेकेंड मोबाइल. थर्ड फिर नॉर्मल दिनचर्या जो भी कर रहे हैं वो. सो एवरीथिंग इज गेटिंग लेट. So what is happening is we are more focused on human body in some or the other way.
body, organs, brain, we are only connected to that. We are not getting to, हम ना mind तक पहुंच रहे हैं, ना soul तक पहुंच रहे हैं, ना supreme soul पहुंच रहे हैं. So what I wanted to see where we are reaching is, first we start with human body. Then it comes spinal cord, that all the functions, all the our body organs and everything is there, and we have all the knowledges for this. Brain, हम लोग ये 3 स्टेप तक ही पहुंच पाते हैं. Then mind. Now what is mind? Mind is not visible. हम brain और mind को combine ना करें. ब्रेन इज अ फिजिकल एंटिटी जो हमारे यहाँ दिमाग में है. तो ब्रेन हमारे यहाँ बॉडी ऑर्गन है. माइंड इज कॉल्ड बुद्धि, और वी कैन टेल इंटेलेक्ट. सो इट इज इनविजिबल. अगेन सोल, इट इज इनविजिबल बट इट इज अ फैक्ट. हम नहीं माने या मानेंगे ये इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सोल इज देयर. इट इज अ फैक्ट. दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग बॉडी एंड अ डेड बॉडी. सो सोल इज देयर. इसके ऊपर सुप्रीम सोल, हम कोई भी रूप से भगवान को माने, लेकिन क्रिएटर तो हैं, राइट. सो वी हैव गिवन इट डिफरेंट नेम्स. हमने अलग अलग नाम दिया है उसको. सो इट इज लाइक यू कॉल इट सोल, सुप्रीम सोल. यू गिव डिफरेंट नेम्स ऑफ गॉड्स लाइक Krishna, Shiva, Devi, whatever XYZ you believe in. But then obviously the fact remains the same that there is a divine, right? So it cannot be from human body to soul, right? It always has to be from supreme soul to human body. That is the last step. हमारा दिनचर्या कहाँ से शुरू होता है? मुझसे. मैं, मुझसे, मेरा शरीर, मेरा बॉडी, मेरी क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज नाइस. बट हमारा जो पहले का दिनचर्या था, जब हम थोड़े 50-60 साल पहले जब जो दिनचर्या था, वो कहता था कि हम सुबह उठते थे. We used to get up in the morning. First thing what we used to do is prayer. We used to, मतलब वो हर समाज में या हर रिलीजन में हर गॉड ने हमको यही समझाया है कि get up in the morning. Early morning, that is 5 or 6, whatever time we get up in the morning, and first thing what we have to do is prayer. Why prayer or why the remembrance of God? Because it is a connection. It is we can say it is a electricity, or it is a connection between a soul and a divine soul. वो connection हम नहीं कर रहे हैं. That is what it is happening. That connection is not, we are not doing that connection. We are just हम लोग जो कर रहे हैं वो होए जा रहा है, एक दिनचर्या चले जा रहा है. So first thing is prayer. प्रेयर से हमको वो एनर्जी मिलती है फ्रॉम द डिवाइन सोल. हम लोग जब सोते हैं तो भी हम ऐसे ही सोचते सोचते सो जाते हैं, और वी आर बिजी विद द मोबाइल, और हम मोबाइल करते करते सो जाते हैं. तो दैट कनेक्शन इज नॉट एबल टू बिल्ड अप. I will try and share one small video over it, so you will be able to understand what I am trying to say. Yes. Is it audible also? Yes, ma'am, it is audible. Okay, thank you. ये वीडियो में हमें बताया गया है कि कैसे हमारा बॉडी बना हुआ है. हमारे बॉडी के अंदर सोल है. सोल में हमारे अंदर एक एनर्जी का पूरा नर्वस सिस्टम चलता है. सारी नर्व्स जैसे जड़ों की तरह फैली हुई है, राइट. सो जैसे स्पाइन है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, उसमें सारी नर्व्स हमारे बॉडी के अंदर फैली हुई है. सेम वे जैसे ब्लड नर्व्स है वो सारी फैली हुई है हमारे बॉडी के अंदर. सेम वे इन द इनविजिबल फॉर्म हमारे सोल की एनर्जी की सारी नर्व्स हमारे बॉडी के अंदर फैली हुई है, और उस नर्व्स में हमेशा एनर्जी फ्रॉम द डिवाइन वो पास आउट होती है. डिवाइन ऑलवेज कीप्स अस गिविंग अस द एनर्जी. So this is a short video. Please have a
विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब ये है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। See, this is the way how energy comes in our body. So मैंने जब ये सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने पूछा था कि हम बीमार क्यों होते हैं। रीजन इज कि जब जैसे ये वीडियो में बताया कि ऊपर से हमारे अंदर हमारे मस्तिष्क से ऊर्जा पास ऑन हो रही है। अब हम जब बहुत ज्यादा सोचते हैं, लाइक अगर हम 1 2 3 विचार होते हैं तो वी आर लाइक ओके, बट देन हम जब बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से जब वो डिवाइन एनर्जी हमारे ऊपर या हम पे आ रही होती है, लाइक वो ऑल टाइम आती रहती है, तो वो जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। जब वो फ्लो स्टॉप हो जाता है तो हमारे अंदर जो विचार नॉन स्टॉप चलते रहते हैं, अगर बहुत नेगेटिव विचार है, बहुत समय से वो विचार चल रहे हैं हमारे अंदर, लाइक महीने 2 महीने वी आर अपसेट ऑन समथिंग, और वो ही विचार नॉन स्टॉप बहुत टाइम तक चल रहे हैं, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू बीमारी इन आवर बॉडी। वो कुछ ना कुछ बीमारी के रूप में ले लेंगे। हम कुछ ना कुछ इतना ज्यादा सोचते हैं, वी आर सो ऑक्यूपाइड, और मोबाइल्स की वजह से, टीवी सीरियल्स की वजह से, एंड ऑल दिस थिंग्स वी आर सो ऑक्यूपाइड कि नॉन स्टॉप वी आर थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग। Because of that we are unable to get that energy in our body. So through meditations, through conscious practice of meditation, हम ये जो divine energy है तो meditation से करते हैं कि become one। ओके, सो थ्रू मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आइदर वी कम टू 1 थॉट और 0 थॉट, एंड दैट कॉन्शियस मेडिटेशन, थ्रू दैट वी कैन वी ऑलवेज कैन हैव दैट एनर्जी टू आवर बॉडी, and that's why we have come up to a psychoneurobics. And what is psychoneurobics? Psychoneurobics is a conscious meditations through mind to entire nervous system, and it is coming up with some exercises. So that's why it is like we sit down with the meditations, and that is a connection to supreme soul and our soul, so that जो बीमारियां हैं हमारे अंदर, जो भी ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी जो बीमारी है हमारे अंदर, तो बिकॉज ऑफ दैट वो मेडिटेशंस के थ्रू वो बीमारी पूरी तरह निकल जाती है। विद द कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ साइकोन्यूरोबिक्स ऑल्सो, with continuous practice of psychoneurobics we have experienced कि काफी बीमारियां ठीक हो जाती है। जिनसे मैंने सीखा था उनको तो काफी बीमारियां थी और उन्होंने खुद अपनी बीमारी ठीक की थी।
और इन्होंने उनको कैंसर था और डायबिटीज भी था। सो थ्रू द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ साइकोन्यूरोबिक्स उन्होंने अपनी बीमारी ठीक की थी विद द प्रैक्टिस ऑफ। जब मैंने शुरू किया था तो इवन आई वाज इन अ बैड शेप, इन अ डिप्रेशन और समथिंग। तो जब सर ने मुझे साइकोन्यूरोबिक्स समझाया तो आई यूज्ड टू डू ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे. So this basically this psychoneurobics is like we will start an explanation short with a screen sharing off. So what is psychoneurobics? We will understand what is psychoneurobics. So basically psychoneurobics is mind, not brain, mind. न्यूरो इज नर्वस सिस्टम. हमारे जो वीडियो में देखा जो पूरे अंदर एनर्जी की नर्व्स जो हैं, तो एंटायर दैट न्यूरो सिस्टम एंड बिक्स इज एक्सरसाइजेस. सो साइकोन्यूरोबिक्स इट इज नेम कि एक्सरसाइज थ्रू माइंड. हमारे अंदर जैसे अंदर फिजिकल फॉर्म में पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, सेम वे वी हैव एनर्जी सेंटर्स. Same way, just a minute. Same way we have energy centers. 7 energy centers we have from base of the spine to till our head. So there are 7 energy centers. Lack of energies in these energy centers gives us illness, gives us disease. लेकिन अगर हम मेडिटेशंस के द्वारा या साइकोन्यूरोबिक्स एक्सरसाइज के द्वारा ये एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर देते हैं तो वो बीमारियां दूर हो जाती हैं. आई स्टार्टेड विद इलनेसेस कि क्यों बीमारी होती है, क्योंकि सब ऑर्गन्स एज इट इज हैं, फिर भी हमको बीमारी है जो कई बार ठीक नहीं हो पाती है. So there are some researches done कि हमारे विचारों की वजह से भी बीमारियां होती हैं. Most of like 80% it is said कि बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं. साइकोसोमैटिक मतलब कि हमारे विचारों से हम वो बीमार हो जाते हैं. लाइक कि अगर आप कहा जाता है, इट्स वेरी कॉमन कि अगर बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में हो, लाइक 2 months 3 months 4 months, और ऐसे कुछ स्ट्रेस में हैं आप, लगातार स्ट्रेस में हो, तो somehow either you will get diabetic or you will get BP or some other disease you will get. So what is happening? ये हो रहा है कि आपके थॉट्स की वजह से जो कंटिन्यूअस आप नेगेटिव फॉर्म ऑफ थॉट्स जो हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, सो उसकी वजह से आपको नॉन स्टॉप आप वही थॉट्स में हैं और दोज थॉट्स इज डीएक्टिवेटिंग आवर एनर्जी सेंटर्स. Right, those energy centers, suppose you are in stress and आपको by the end of 6 months or something आपको diabetes हो गया. So diabetes is something like you are आपको ये जो थर्ड चक्र है एनर्जी सेंटर, so that energy center has been deactivated. वो डीएक्टिवेट होने का मतलब है कि उसमें एनर्जी कम हो गई है. कम हो गई मतलब जो हम पे डिवाइन एनर्जी नॉनस्टॉप आ रही है ड्यू टू द नॉनस्टॉप थिंकिंग ऑफ स्ट्रेस वाले जो थॉट्स है, उनके नॉनस्टॉप थिंकिंग की वजह से हमको वो एनर्जी मिल नहीं पा रही है. वो जब एनर्जी मिल नहीं पा रही है तो हमारा एक एनर्जी सेंटर वो डीएक्टिवेट हो गया है. सो समहाउ वी गेट दैट इलनेस, दैट इज ये डायबिटीज हो जाता है या बीपी हो जाता है या व्हाटएवर. सो व्हाट इज द रीजन? किसकी वजह से बीमारी हुई? हमारे थॉट्स की वजह से. थॉट्स कहाँ थे? अंदर माइंड में. अंदर माइंड में हमको थॉट से, कहाँ से शुरुआत हुई? माइंड से. कहाँ बीमारी है? अंदर. कहाँ पे? एनर्जी सेंटर डीएक्टिवेट हुआ. और हम क्या करते हैं, आई एम लाइक नॉट अगेंस्ट टू एनीथिंग, नो मतलब कोई डॉक्टर्स कोई भी मेडिकल साइंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमको अगर बीमारी अंदर से हुई है ड्यू टू आवर थॉट, तो हमको वो इलाज भी अंदर ही करना पड़ेगा. आप अगर अंदर इलाज करेंगे आपके माइंड के हेल्प से, आपके एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करेंगे, तो तभी आपकी वो बीमारी ठीक हो पाएगी.
वो 100% ठीक होने के लिए ही ये मेडिटेशन आजकल कहा जाता है कि डू योगा, डू मेडिटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. सो इट इज it is said कि मेडिटेशंस के द्वारा ये सारे एनर्जी सेंटर है वो कलर्स अलग अलग पहने जाते थे. ना दिस साउंड थेरेपी, सातों एनर्जी सेंटर्स की अलग अलग साउंड है जो हम प्रैक्टिस करते हैं साइकोन्यूरोबिक से. उन साउंड के वाइब्रेशन से भी हमारा हीलिंग होता है. थॉट, that is through mind, which thought we give, like if we give I am a very powerful soul, or I am a blissful soul, or something like those positive affirmations we say doing that exercises. So this is how the entire healing is done. This is how कि हम पूरा अपने एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं. सो जिससे हमारी हीलिंग होती है, जिससे हमारे डिजीज जो होते हैं वो हम पूरी तरह उसको जीरो कर सकते हैं. मतलब वी कैन बिकम अ डिजीज फ्री ह्यूमन बीइंग. सो दिस इज अ साइकोन्यूरोबिक्स एक्सरसाइज विच वी डू इट. So these are the 7 energy centers in our body. That is again invisible form. वो कहीं दिखते नहीं है एक्सेप्ट अगर ऑरा स्कैनिंग करते हैं. देन ऑल्सो एनर्जी नहीं दिखती, शायद शरीर का ऑरा दिखता है लेकिन एनर्जी सेंटर्स या एनर्जी नहीं दिखती है. सो दिस आर 7 एनर्जी सेंटर्स विच आर देयर इन आवर बॉडी. Right? So all energy centers are associated with different values. So when we at the base of our spine, there is a Muladhara chakra which is of red color. Right? There are 4 petals. This is of red color, and it can said as root chakra also. It is basically linked with the bones and all bones, muscles, and all those things. So it is Muladhara chakra. Above that, like navel से 2 उंगली नीचे, there is a sacral chakra, जो सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं, प्योरीफाइंग जिसको प्योर रखते हैं. दैट इज रिलेटेड टू ब्लड, स्किन डिजीज, ब्लड प्यूरिफिकेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स. सो दैट इज सेकंड चक्र. दिस इज ऑरेंज कलर विच वी हैव टू थ्रू साइकोन्यूरोबिक्स भी उसको हम ऑरेंज कलर की एनर्जी देके वो चक्र को एक्टिवेट करते हैं. Third is solar plexus, that is Manipur chakra. Manipur chakra is related to joy. Manipur also heals diabetes and liver disease and all those things. So Manipur deactivate होता है तो हमको diabetes के problem, obesity के problem, livers के problem ऐसे सब कुछ होते हैं. Right? So it is above the navel. Again, fourth chakra is heart chakra. It is related to love. It is related to love. It is an heart chakra. Heart related problems, BP है, lungs, acidity problems and all those things. So अगर जब ये चक्र deactivate होता है या कम एनर्जी होती है इसमें, so this chakras get deactivated. इसीलिए ये चक्र का एनर्जी लेस होने की वजह से हमको बीपी या हार्ट प्रॉब्लम्स या ऐसे सब होते हैं. फिफ्थ चक्र इज एट आवर थ्रोट. दैट इज कॉल्ड थ्रोट चक्र. ये इसको दिस इज रिलेटेड टू आवर ENT प्रॉब्लम. दैट इज आईज ENT प्रॉब्लम. दिस इज ears, nose and throat problem. Right? So this is also related to stress. Lot of stress and it और ENT का जो भी प्रॉब्लम रहता है. So अगर ये deactivated है, the throat chakra is deactivated. It is exactly a throat. So if this chakra is deactivated, so we get some other disease related to this. This is a sixth is third eye chakra. Third eye chakra is here between our eyes, somewhere around here, right? And it is related to our neuro system, our brains, our eyes, some of the other problem with related to brain
और आईज और एंटायर नर्वस सिस्टम अगर कुछ है, लाइक अगर पैरालिसिस या ऐसा कुछ हो गया है, सो दिस चक्र इज डीएक्टिवेटेड, इसमें एनर्जी कम है, सो दैट्स व्हाई दिस चक्र इज डीएक्टिवेटेड. And above our head, on here, above our head, there is a crown chakra. Crown chakra is the seventh chakra here, and anything hormonal related problems, or नींद कम आना or something like that. So this chakra has less energy. Cannot get deactivated, but it has very less energy. So these are the 7 chakras. साइकोनेरोबिक्स की जो एक्सरसाइज है, so we work on this chakra system. There are 7 energy centers. We can call them chakras also. Somehow, somewhere we must have heard about it. So these are 7 energy centers, जिसको चक्रस भी बोलते हैं. उनकी एनर्जी कम हो जाती है तो ये चक्रस डीएक्टिवेट हो जाते हैं. ये डीएक्टिवेट होने की वजह से हमको बीमारी आती है. वो बीमारियां ठीक करने के लिए वी गो टू डॉक्टर्स हमको पिल्स देते हैं, बट समहाउ द प्रॉब्लम्स इज इनसाइड अस, सो वी शुड ऑल्सो डू द सोल्यूशन इनसाइड अस. दवाइयाँ कंटिन्यू, अगर किसी को डायबिटीज है तो ऐसा नहीं है कि साइकोनेरोबिक्स शुरू करो तो डायबिटीज की दवाई बंद कर दो, नहीं, अचानक से कुछ भी नहीं बंद करते हैं हम. We continue with that. You continue to psychonerobics also. It is not an option to any kind of meditation. Medicines. It is an supplement. इसके साथ आप ये भी करो and you see your healing will be very fast. बहुत fast हो जाएगा आपका healing. Right? So this is how we do it. So this is like Muladhara chakra. रेड कलर का जो चक्र जैसे मैंने बताया, एंड उसके लिए हम एम्पावरिंग न्यूरोबिक्स करते हैं. उसके लिए वी यूज मुद्रा, वी यूज रेड कलर, वी सी द रेड एनर्जी कमिंग इनटू अस एंड विद द एफर्मेशंस एंड विद द इसके लिए शब्द जो है वो लंग है, और उसके हेल्प से हम वो न्यूरोबिक्स की एक्सरसाइज करते हैं. Then there is हरा चक्र, that is जो ऑरेंज कलर का चक्र मैंने बताया था, उसके लिए ऑरेंज कलर है. उसके लिए हम प्यूरिफाइंग न्यूरोबिक्स करते हैं. There is उसके लिए जो शब्द है वो वंग है, तो we use that for the exercise. Then मणिपुर चक्र जिसका येलो कलर है, for that we do joyful neurobics. Alphabet is रंग, स्वर जो है वो हम रंग लेते हैं. हार्ट चक्र के लिए, अनाहत चक्र के लिए ग्रीन कलर है, उसके लिए हम लवफुल न्यूरोबिक्स करते हैं जिसका स्वर है यंग. देन विशुद्धि चक्र, दैट इज थ्रोट चक्र, लाइट ब्लू कलर एंड पीसफुल न्यूरोबिक्स, एंड स्वर उसका जो है वो हंग है. आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, इंडिगो कलर, दैट इज डार्क ब्लू कलर, एंड फॉर दैट वी डू एनलाइटनिंग न्यूरोबिक्स. सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र के लिए वायलेट कलर एंड ब्लिसफुल न्यूरोबिक्स, और उसका स्वर है हमिंग साउंड करते हैं. और जैसे ये दोनों ओम का पूरा ये जो आज्ञा चक्र है और ये सहस्त्रार चक्र है, वो पूरा ओम के स्वर से वो उसकी न्यूरोबिक्स की एक्सरसाइज होती है. Right? Then we also teach neurobic spa meditation, that is like if meditations है, like we can say like मैं guide करती जाऊंगी and we do the meditations through all the energy, color energy taking from divine, और हम पूरे शरीर में वो हम करते हैं. So entirely psycho neurobic spa meditation we call it that. वो न्यूरोबिक स्पा है, लाइक डिवाइन की एनर्जी का शावर लेना है. अलग अलग एनर्जी का शावर लेके हम पूरा अपने शरीर में अपने एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं, एंड विद हेल्प ऑफ दैट वी आर एबल टू गेट क्योर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीजेस. राइट? सो दिस इज व्हाट साइकोन्यूरोबिक्स इज all about, and I would like to छोटा सा
I'm audible, right? I guess. I'm sorry, I have not seen the messages. Yes, ma'am, you are audible. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाना चाहूंगी आपको 5 मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए अबाउट दिस न्यूरोबिक्स. सो आई वुड लाइक कि आप लोग सब सीधे बैठ जाएं and we'll do peaceful neurobics. For that we have to take Vayu Mudra. That is, Vayu Mudra is first finger on जो पहली फिंगर है आपको अंगूठे की लाइन पे लगानी है और अंगूठे से लॉक करना है. बाकी 3 फिंगर्स सीधी रहेंगी. राइट, मैं वापस बता दूं. फर्स्ट फिंगर को हम अंगूठे की लाइन पे लगाएंगे और अंगूठे से इस तरह लॉक करेंगे. इज इट विजिबल? बाकी 3 फिंगर्स को हम सीधे रखेंगे. अपने लैप पे जैसे आप बैठे हैं तो हमको इस तरह से सीधा रखना है. राइट, सीधा रखेंगे तो वी लाइक हमारे आईज, हमारे हाथ जो है वो डिवाइन एनर्जी को पाने के लिए ऐसे सीधे होने चाहिए. राइट, सो वी हम ऐसे सीधे रखेंगे ये मुद्रा में. This is for peaceful neurobics. So we will visualize light blue color. जैसे हमने वो वीडियो में देखा था कैसे हमारे ऊपर वो डिवाइन एनर्जी आती है और हमारे शरीर में मस्तिष्क से अंदर आते हुए हमारे पूरे शरीर में अंदर जितने भी नर्व्स है पूरे नर्व्स में वो फैल जाती है और पूरे नर्व्स में वो मतलब मस्तिष्क से लेके पाँव के अंगूठे तक वो सारी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू विजुअलाइज इट कि लाइट ब्लू कलर की एनर्जी फ्रॉम डिवाइन इज कमिंग. आप अपनी आंखें बंद करेंगे और जिस तरह से मैं बोलती जाऊं आप वैसे विजुअलाइज करते रहें. सो यू विल बी एबल टू डू इट एंड जस्ट फील इट कि व्हाट आई एम सेइंग. यू जस्ट कीप विजुअलाइजिंग एंड फील इट. वी विल सिट स्ट्रेट, back straight with this mudra in both our hands. We will close our eyes. You will close your eyes. Relax. Relax. अपने मन में रिलैक्स शब्द दोहराते रहें और अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर दें. अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें. जैसे जैसे आप रिलैक्स शब्द दोहराते जाएंगे वैसे वैसे आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स होता जाएगा. रिलैक्स, रिलैक्स. अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखें. देखिए अपनी सांसें कैसे सांसों का आवन जावन हो रहा है. इनहेल एंड एक्सहेल. रिलैक्स, रिलैक्स. अपना पूरा ध्यान सांसों पे रखें. देखें अपने आप को, आपका शरीर, शरीर के अंदर हम आत्मा के रूप में हमारे मस्तिष्क में अंदर बैठे हैं. हमारे मस्तिष्क के ऊपर देखें डिवाइन एनर्जी, स्काई ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर की डिवाइन एनर्जी हमारे मस्तिष्क से ऊपर, हमारे मस्तिष्क से हमारे अंदर शरीर में सारी नर्व्स में आती जा रही है. देखते जाएं, विजुअलाइज करते जाएं. मस्तिष्क से लेके आँखों में,
आँखों से लेके कानों तक, नाक तक, पूरे मस्तिष्क में, सारी नसों में स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा फैलती जा रही है। गले तक देखें, सारी नसों में स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा धीरे धीरे फैलती जा रही है। गले से लेके कंधों तक, कंधों से लेके कमर तक, पीठ तक, कमर तक, पेट तक, दोनों हाथों में स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा सारी नसों में फैलती जा रही है। दोनों हाथों में उंगलियों तक सारी नसों में स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा, जो शांति की ऊर्जा भी है, वो पूरी तरह फैलती जा रही है। पेट तक, कमर तक देखते जाएं, विजुअलाइज करते जाएं आपके पूरे शरीर में स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, डिवाइन ऊर्जा फैलती जा रही है। दोनों जांघों में, घुटनों तक, सारी नसों में स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा, डिवाइन ऊर्जा फैलती जा रही है और आपके पूरे शरीर को शांति की ऊर्जा मिलती जा रही है। घुटनों से लेके नीचे पांव तक, एंकल तक देखें, उंगलियों तक, पैरों के अंगूठे तक देखें। पूरा शरीर डिवाइन की स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा पूरी तरह भर चुका है। डिवाइन की पूरी ऊर्जा, स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा, जो शांति की ऊर्जा भी है। हमारा शरीर, सारी नसों में ये ऊर्जा पूरी तरह भर चुकी है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं ये ऊर्जा हमारे शरीर में। देखें अपने शरीर को पूरी तरह ऊर्जा से भरपूर। कुछ पलों के लिए इसी ऊर्जा में रहें, महसूस करते रहें। धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आएंगे। डिवाइन ऊर्जा से शरीर में धीरे धीरे जागृत होंगे, इस अवस्था से बाहर आएंगे। Rub your hands और अपने आँखों पे लगाएं और फेस पे लगाएं। This is how psychoneurobics meditation is practiced. I hope everyone was able to do this. This is how it is practiced. जो न्यूरोबिक स्पा है
वो हम इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं so that it entire energy system is activated, and we have different exercises which we do with the help of mudra and color and swar, right? So I will tell Divya to take over. Divya. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for the informative and insightful introductory session. I'll just give a little more information about this session. So this is the certification course on psychoneurobics and divine healing, which will be starting from 29th April. And it is a 12-hour course in which the first 7 days will be a 1-hour session, including both theory and practical. And after the 7 days, there will be 30-minute sessions, which will be fully practical. The fees for this course are 1,500 rupees. And if there are any questions or doubts, please feel free to unmute or write in the chat box. दीदी आप ये कोर्स के बारे में कुछ बताएंगे? कोर्स में हम पहले 7 दिन वी विल बी लर्निंग अबाउट साइकोन्यूरोबिक्स इन डिटेल्स, लाइक हर चक्र के अलग साइकोन्यूरोबिक्स है. So हर एक दिन, like first 7 days will be the entire explanation of psychoneurobics, and along with that there will be the practice of psychoneurobics as well. For example, अगर मूलाधार चक्र, like first day we will be practicing and getting the knowledge of मूलाधार चक्र. तो मूलाधार चक्र के बारे में डिटेल्स हम बताएंगे आपको. मूलाधार चक्र किस चीज से एक्टिव होता है, किसकी वजह से, कौन से थॉट की वजह से या क्या चीज की वजह से डीएक्टिवेट हो जाता है, कैसे हम उसको प्रैक्टिस में लाएं, कैसे वो एक्टिवेट करें, व्हाट आर द थिंग्स विच कैन एक्टिवेट दैट मूलाधार चक्र इजीली, एंड देन वी विल प्रैक्टिस इट. सो प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली साथ में चलेगी. जो रोज एक 7 डेज के लिए रोज एक चक्र या एक एनर्जी सेंटर्स के बारे में हम बताएंगे और उसके साथ में वो प्रैक्टिस चलेंगी. देन आफ्टर दैट 7 डेज वी विल बी ओनली डूइंग प्रैक्टिस ऑफ साइकोन्यूरोबिक्स एंड न्यूरोबिक्स का. फॉर दोस दैट विल बी half an hour sessions. Anyone who has any kind of queries can ask the question about the course, about the psychoneurobics or whatever. Om Shanti, sister. Om Shanti, sir. How are you? It is fine. How are you? I'm good. And it was a wonderful session. I'd like to know what are the diseases we can handle with these psychoneurobics? We can handle all kind of diseases, starting from cough, cold, and till cancer. We can practice through psychoneurobics, and it can be healed with the regular practice. But obvious, with the regular practice of psychoneurobics, we can heal any kind of diseases from cough to cancer. In practical, is there any testimonials or you have seen in real life that by practicing this, these are the diseases have been controlled, and in how many days it has happened? So there is no particular time that in how many days the disease can be healed or we can get healed, but that, yeah, it is depends on person to person.
again, and वो कितने लंबे तक समय का वो disease है, that also it is a very important point. Again, practice आप कितना करते हैं, like when I started the practicing, so I used to do twice or thrice a day in मतलब एक दिन में मैं 3 बार 2 बार या 3 बार ये practice करती थी, and I used to practice for 45 minutes. So if a person is consistently doing this practice for 45 minutes once, twice or thrice a day, then his recovery, his healing get very faster. But if he is And doing only I have read in some research articles, and I have even say that diabetes is very easily controlled by this psychoneurobics, and they also get rid of this insulin. Is it true? Yes, sir, absolutely. It is true. We have practiced this thing, and even sir, जिनसे मैंने सीखा था डॉक्टर चंद्रशेखर सर, उनका खुद का भी डायबिटीज उन्होंने हील किया था. And with the regular practice of psychoneurobics, of joyful neurobics and neurobic spa regularly, so ये डायबिटीज भी उनका इंसुलिन छूट जाता है और वो completely हील हो जाते हैं. इवन डॉक्टर्स से कि हाँ भाई, now you don't need to take this medicines or insulin. Okay. So any other questions? If anyone need to ask, please ask. So I guess everyone is अगर हम clear. सीखना चाहें तो मैम अभी जैसे मैम ने कोर्स के बारे में बताया था, तो यू कैन टेक दैट कोर्स, और जैसे वो 7 days हम न्यूरोबिक्स के बारे में हम आपको बताएंगे भी, और उसका और यस 7 days हम लोग आपको न्यूरोबिक्स के बारे में बताएंगे, और उसके बाद में हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, सो दैट आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो जाए एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि किस तरह से न्यूरोबिक्स आपको हीलिंग में और रिकवरी में कैसे वो फास्ट हो जाता है. सो देयर इज अ कोर्स कमिंग अप एंड यू कैन एनरोल विद दैट. And do you have will you have a regular session of this psychoneurobics after this training? Means like after today's webinar? Or no, even after completing the course, whether there is any training session like every day morning or evening, somebody is conducting the Like session that people can participate. After completing the course, as of now, I have not decided, but then at least we are having for 17 days, 17 to 18 days, we are having the course. So 7 days will be theoretical and practical both. And after that, 10 days, I am having practice sessions for half an hour. And as of now, at present, I have not decided the next session dates. Okay. So after the theory classes, there will be a practice sessions every day, half an hour. Yes, after theory classes, there will half an hour every day. There will be a practice, so that people are with me too, and they can practice it. And they will also submit some case studies, isn't it? Yes, absolutely. अगर उनको कुछ problem है and they want to cure it, so accordingly we can means I will suggest them how many times they can do psychoneurobics or how many minutes they should do the psychoneurobics, and they can give us the they can respond us कि उनका क्या problem था और उनको कितने हद तक वो असर करा है. So accordingly. So I think based on that case studies, you will also issue a certificate to everyone. Yes, it's a certificate course. It's a certificate course, people. So what we are going to start in the next week, it's a certificate course. Okay.
And I also learned that with this regular practice of psychoneurologics, people also get into some intuitive powers, like they understand what is to be done, or they are able to read the thoughts of people, or they get to know what is going to happen in the future, something like that. Is it like that? Sir, that again depends on person to person, but yes, we are already born with all these virtues and values. So, जब ये सारे energy centers पूरी तरह activate हो जाते हैं, so our quality, this quality, वो हमारा activate हो जाता है. So there are many people who experience this kind of things also. कि they are able to, their intuition powers become very strong, और या उनको पहले से थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है अगर कोई सिचुएशन आने वाली हो तो, और you know this thing happens. So that is with the regular practice of psychoneurobics. Practice बहुत जरूरी है, practice के बिना नहीं हो पाएगा. So practice is very necessary in this thing. Okay. And I would suggest, if possible, you may conduct these sessions, maybe some practice sessions, like evening hours, yeah, daily, some half an hour. If you start conducting these sessions, maybe our other group members will also participate. We can start with the practice sessions if they want. Because this is at present, so it is a course, so in practice sessions generally there is no explanations, we only practice, so we can talk over it, and if people wants to get into it, so we can do it. That is okay with me. Okay. Yeah. So otherwise, it was a wonderful introductory session, and thank you so much for conducting the session for us. Thank you, sir. Thank you. You gave me a chance to speak over it, and thank you for the wonderful platform. Yes, ma'am. Thank you. Now we'll end the session. Thank you. Thanks a lot, ma'am. And thank you all the participants for listening to me, and take care. Thank you, ma'am. Take care. Bye. Bye-bye.